तो हरे कृष्ण डिवोटीज। तो श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालका तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापम् अपि सुव्रता। The personality of God, it said, my dear Dhruva, the son of king, you have executed pious vows, and I have also known know the desire within your heart. Although your desire is very ambitious and very difficult to fulfill, I shall favor you with its fulfillment. All good fortune unto you. सो हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र दिन है, जैसे हम बता रहे थे, भाद्र पूर्णिमा है। अब कभी सोचा होगा, है ना, हम जब भक्ति में आने से पहले, है ना, कितना सेलिब्रेशंस करते थे, है ना, जो फेस्टिवल्स की हार्डली मंथली एक होता है या दो होता है ना। तो जब वो कृष्ण कॉन्शियस में जुड़ने के बाद डेली कुछ ना कुछ फेस्टिवल, है ना। तो हम कुछ दिन पहले हम जन्माष्टमी सेलिब्रेशन किए थे, इसके बाद फिर राधाष्टमी हुआ था, इसके बाद एकादशी, एकादशी के बाद वामन द्वादशी, वामन द्वादशी के बाद भक्ति विनोद ठाकुर अपीयरेंस डे, फिर कल हमने सेलिब्रेशन किए थे, फिर हरिदास ठाकुर डिसअपीयरेंस डे। हरी बोल प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई हैव अ क्वेश्चन। इनफैक्ट पूरे ग्रुप का ये क्वेश्चन है कि yesterday we were watching some videos on Bhakti Vinod Thakur, and in every video, whatever we read, they said that his birthday was 2nd September. Then how come ISKCON is celebrating his appearance day on the 16th of September? Where it is written 2nd of October, September? September. Prabhuji, we were listening to a video yesterday, and I was reading, and everywhere we finding that they are quoting 2nd September as his birthday, yet ISKCON is celebrating the birthday on 16th. Is there a reason for that? Actually, the calendar is actually made according to some Siddhanta is there, na? Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur they given. So you don't have this Vaishnava calendar? I do have a Vaishnava calendar. Then you can refer that, no? That is that's what I'm saying. Everywhere, like, yesterday we were listening to this documentary by ISKCON, and they were saying that the birth date is 2nd September, yet the Vaishnava calendar says 16th September. So I thought maybe you can throw some light on it. Yeah, so I will give an example. So yesterday we celebrated Bhakti Charu Swami Maharaj appearance day, yeah, Vyasa Puja. So yesterday is the 16th. Today is 18th. Yeah, so yesterday 17th September. So for 17th September, there is a one according to Tithi, like His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj was appeared on Annada Ekadashi. Yes. So, but Bhakti Charu Maharaj, there is also some Tithi there. But Bhakti Charu Maharaj wants to celebrate his appearance, Vyasa Puja, on 17th September, regardless of, मतलब कोई भी हो तिथि, है ना, या उस दिन भद्र पूर्णिमा हो, तो महाराज बोले थे कि मैं 17 सितंबर को मैं सेलिब्रेशन या व्यास पूजा हमारा क्या बोलते हैं डिसाइपल करेंगे। तो ऐसा पूछा गया, महाराज क्यों, ऐसे क्यों? तो क्योंकि बता रहे थे कि उसी दिन 17 सितंबर पे तो प्रभुपाद अमेरिका पे लैंड हुए। ठीक है। तो इसके कारण तो ये बहुत, मैं चाहता हूँ इसी दिन पे मेरा व्यास पूजा हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, तो तिथि के अनुसार जो डेट्स है ना चेंज होते रहते हैं। देखिए अधिक मास आ जाते हैं कभी कभी, है ना। इस साल अधिक मास, पिछले साल अधिक मास था, है ना, तो एक महीना आगे चले जाते हैं। अब देखा होगा ना पुरुषोत्तम मास, है ना। Okay, so we assume that is the reason that the English calendar sticks to its there are no changes, whereas our Hindu calendar keeps changing tithis. So we also assume that that could be the reason. Okay, thank you, Prabhuji. Thank you. तो उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमको वैष्णव कैलेंडर मिल जाते हैं, तो जितना जिस डेट पे है उस डेट पे हम सेलिब्रेट कर लेंगे, है ना। तो ज्यादा चिंता करेंगे तो फिर क्या बोलते हैं अलग वो, और
क्या है कि प्लेस के हिसाब से भी चेंज होता है एकादशी का पारण टाइम, जी तो वो भी जी ध्यान जी। रखना पड़ेगा। आप लोग मुंबई में रहते हैं तो मुंबई हाँ के हिसाब जी। से रेफर करिए, या वृंदावन में रहते हैं वृंदावन के हिसाब से रेफर करिए। जी जी। ये नहीं, भी अब थोड़ा। चिंता तो नहीं, वी जस्ट क्यूरियस। नहीं नहीं नहीं। एनीवे, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। सो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार कुछ सेलिब्रेशंस चल ही रहे, फास्टिंग एंड फीस्टिंग ना। 12 बजे तक फास्टिंग करते थे, फिर फीस्टिंग करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर का राधाष्टमी हो गया, फिर एकादशी भी उस दिन वामन द्वादशी हो गया था उसका। पिछले दिन मतलब एकादशी के दिन पे हमने उपवास रखे थे, फिर बाद में फिर द्वादशी का भी फीस्ट था, है ना। तो इस तरह लगातार हम ये सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो ये बहुत कृपा है ना। हम भक्ति में आने से पहले हमको क्या पता है कुछ पता नहीं था। फिर अभी इधर आके हमने इतना अच्छा मौका मिल रहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, माधवती थी बकती जननी जतन पालन कोरी। तो माधवती थी, है ना। तो ये एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी जो भी है, जो पवित्र दिन है, जो माधव तिथि है, तो जो ध्यान पूर्वक करते हैं, अच्छे इंटेंशन, जैसे इधर 18th श्लोक में बता रहे हैं ना, गुड इंटेंशंस। तो गुड इंटेंशन के साथ हम करेंगे, पालन करेंगे उस दिन को, तो हम सर्टेनली आगे बढ़ेंगे। तो एक बार, जैसे अभी जनरली तो क्लास होता है उस दिन भी, तो एंड ऑफ द मूवमेंट जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर की अपेयरेंस डे, तो फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं भक्त लोग, प्रभु जी कि मैं हम भक्ति विनोद ठाकुर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। तो फिर जो सीनियर भक्त हैं, सिंपल, तो भक्ति विनोद ठाकुर टीचिंग्स दिए हैं, वो टीचिंग्स को आगे बढ़ाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उसको आगे बढ़ाया श्रील प्रभुपाद। तो हमको क्या करना चाहिए, तो जो श्रील प्रभुपाद ने हमको टीचिंग्स दिए हैं, जो बुक्स में है, जो श्रीमद् भागवतम इत्यादि, तो उसको हम अच्छे से पढ़े, जीवन में उतारे और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करें, है ना। तो इससे हम भक्ति विनोद ठाकुर को भी प्रसन्न करेंगे। सिंपल सा आंसर, ज्यादा सोचने के नहीं सो जस्ट वी हैव टू रीड दिस श्रील प्रभुपाद बुक्स, है ना, विगरसली, अटेंटिवली, एंड देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। जन्म सार्थक करी परोपकार, इससे तो हमारे गुरु परंपरा है, सब प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो जैसे एकादशी इत्यादि दिन पे हम क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा जप करते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस हमको दिया है, तो नो, सो इसलिए हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सारा हम क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव, क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ द माइंड, है ना, थोड़ा लगा के हम करेंगे ना, वही रिजल्ट, जो सेम एक्टिविटी, है ना, सब लोग वही एक्टिविटी कर रहे हैं, सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं, सब लोग रीडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्यों? इंटेंशंस, गुड इंटेंशंस, जैसे हम 18th श्लोक में बता रहे, गुड इंटेंशंस। तो आज भी बहुत पवित्र दिन है, भाद्र पूर्णिमा है, तो आज के दिन पे श्रीमद् भागवतम जैसे परीक्षित महाराज पूरा कंप्लीट किए थे बोलना, फिर वो एक बेनेडिक्शन देते हैं। इसी दिन पे कोई भी व्यक्ति, है ना, श्रीमद् भागवतम को लेते हैं या गिफ्ट करते हैं, है ना, तो सिंहासन में रख के, जो गोल्डन थ्रोन बोलते हैं, तो जैसे अभी जो इस्कॉन जुहू में एक गोल्डन थ्रोन बना है ना, और भगवान के आल्टर भी एक गोल्डन थ्रोन ही है ना, जो भगवान को अर्पित करते हैं, ये भागवतम, ये भगवान से अभिन्न है भागवतम। तो फिर ऑल्टर में रखते हैं, फिर उसको अपने आप को गिफ्ट करो या दूसरों को गिफ्ट करिए, है ना, इससे आपको क्या मिल जाते हैं, गोलोक का टिकट, है ना, सीधा, है ना, हरि बोल। तो आप लोगों को ये क्या बोलते हैं, डिस्काउंट है, चीप में हो रहे हैं आपको गोलक जाने का, तो आप इसका फायदा उठाइए। तो जिसको लेना है वो ले सकते हैं, और जिसको दूसरों को गिफ्ट करना या स्पॉन्सर करना चाहते हैं, इधर ब्रह्मचारी लोग हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, किसी के पास नहीं है, तो फिर आपके नाम पे आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, है ना। तो इससे अच्छा मौका है ना? तो इसको आप उठाइए। तो और दूसरा, इसी दिन पे विश्वरूप महोत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं। विश्वरूप कौन है? विश्वरूप विश्वम्बर, जो निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु की बड़े भाई विश्वरूप, है ना। तो सची माता एंड जगन्नाथ मिश्र का, तो बहुत बहुत सारे पुत्र हुए, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, उनका देहांत हो रहा था बचपन में, बाद में फिर एक पुत्र का हुआ था, वो उनका नाम है विश्वरूप, है ना। चैतन्य महाप्रभु से पहले आए, तो बड़ा भाई। तो अगर एक तरह से देखेंगे तो बलराम के अंश है ना।
शंकरशन बलराम है ना का विस्तार है, बोल सकते हैं विश्व रूप। तो एक बार ऐसे आता है कथा कि तो सची माता यानी जगन्नाथ मिश्र सोचे कि विश्व रूप का शादी ए, कराना चाहिए। तो फिर उसको पता चला विश्व रूप को, तो फिर वो संन्यास लेके चले गए, है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आश्वासन देते हैं तो हम संन्यास नहीं लेंगे। तो फिर उसमें ही बता देते हैं कि हम तुरंत संन्यास लेने वाले हैं। तो जब संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु तो फिर ये बोलते हैं कि मैं मेरा बड़ा भाई को ढूंढना चाहता हूँ। तो फिर वो ढूंढते ढूंढते तो एक पंढरपुर, है ना, जो सोलापुर के डिस्ट्रिक्ट में पंढरपुर आप जानते हैं फेमस है, तो विट्ठल जी, तो भगवान विट्ठल, तो उधर आते हैं तो तब पता चल जाता है कि विश्व रूप तो उन्हें संन्यास लिया है, उनका नाम पड़ा है शंकरारण्य। तो उसके बाद उनका शरीर छोड़ दिया था। तो फिर उसका ऐसे शरीर तो छोड़ दिया नहीं बोल सकते हम, मतलब उनका लीला खत्म किया, अंत किया। जो इसके बाद तो उस दिन एक फेस्टिवल किया था, तो इसको बोलते हैं विश्व रूप महोत्सव, है ना। तो और इसी दिन पे श्रील श्रील प्रभुपाद, है ना, संन्यास लिए थे, है ना, केशव महाराज से। तो उस दिन भी बहुत आनंददायक था, कीर्तन चल रहा था। तो सडनली श्रील प्रभुपाद को बोला गया कि आप लेक्चर लीजिए। तो जो ऑडियंस बैठे हैं उसमें से बहुत कम लोगों को इंग्लिश आता है ना, बट सब बाकी सब लोगों को हिंदी आता है। तो बट श्रील प्रभुपाद उस दिन जब संन्यास लेने के बाद तो इंग्लिश में क्लास दिए। क्यों? तो ये बताना चाहते हैं कि जब उनको उनका गुरु महाराज आदेश दिए थे, क्या आदेश था? तो आप पाश्चात्य देश में जाइए, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप प्रचार कीजिए ये भागवतम का, है ना। तो इससे आपका भी भला होगा, आपका ऑडियंस का भी भला होगा, है ना। तो उसको याद रखते हुए तो श्रील प्रभुपाद ने उस दिन इंग्लिश में क्लास दी, है ना। तो ये आज की बहुत क्या बोलते हैं पवित्र दिन है, तो आप भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो ये भागवतम श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। तो जैसे इसलिए मैंने अब प्रणाम मंत्र में अब आज मैंने यही श्लोक बोला, कृष्ण स्वदाम पगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशाम एष पुराणार्को अधुनोदिता। भागवतम का बहुत ग्लोरीज है। सनातन गोस्वामी, है ना, जब अ, ये बोले थे कि राजा को, राजा हुसैन शाह, है ना, किंग, तो उनको बोले कि मैं बीमार हूँ, है ना, अभी मैं ड्यूटी में नहीं आऊंगा। तो ऐसा बहाना बना के फिर घर पे बैठ के क्या कर रहे थे, तो 10 15 ब्राह्मण को बुलाए, तो उनके साथ श्रीमद् भागवतम को चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने बोलते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम मेरा लाइफ है, मेरा फ्रेंड है, मेरा कंपेनियन है, एवरीथिंग है, ये श्रीमद् भागवतम मेरा एवरीथिंग है। तो ये इतना श्रद्धा है, देखिए। तो फिर श्रीमद् भागवतम की एंड में श्लोक में भी यही बोलते हैं, निम्न गानम यथा गंगा, ना, देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। ये पुराणों जो 18 पुराण है जो, और ये वेदास का पका हुआ फल क्या है ना, ये श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का स्टार्टिंग में भी वेदव्यास ने उसमें भी एक श्लोक में बोलते हैं ना, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भुवि भावुका। तो इसमें सिद्धांत भी है और रस भी है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो बस हम इसको रस को पीते रहना चाहिए, है ना। उसमें गुटिली नहीं है ना, छिलका भी नहीं है। तो आपको पर गाढ़ा हुआ, गाढ़ा क्या बोलते हैं, रस है ना। तो गाढ़ा रस तो आम रस से भी गाढ़ा है तो गाढ़ा रस को पीते रहना पड़ेगा। बस हमको एक टारगेट्स लेना चाहिए, हमको इनिशियल हमको टेस्ट नहीं है ना, तो टेस्ट लाने के लिए हमको कुछ टारगेट्स लेके तो पढ़ते रहना तो धीरे धीरे हमको टेस्ट आ जाएगा, है ना। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फोर्थ कैंटो का। तो देखिए ध्रुव महाराज अभी जंगल जा रहे हैं, है ना, जंगल गए ऑलरेडी, है ना। तो 5 साल के वर्ष में, अभी आप देखो आजकल कौन जंगल जाएगा, है ना। 5 साल के वर्ष में जंगल जा रहे हैं, जंगल गए, है ना। तो अभी हमारा एज सर्टेनली ऐसे बोला जाते हैं ना, तो 50 साल के बाद आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए, रिटायरमेंट का समय हो गया, अभी रिटायरमेंट लेना चाहिए। इसलिए आप देख लीजिए तो 50
के बाद क्या आ जाते हैं 51। 51 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 51, है ना। 52 का क्या बोलते हैं? 52। सही है, एम आई राइट? हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji. जी Yes, प्रभु Prabhuji. जी, यस यस। Yes, Prabhuji. Right. तो 51, 52, तो 111। तो बता रहे कि आपका 50 हो गया भाई, है ना। अभी छोड़ दो घर वाले, पूरा सब कुछ छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या है कि इधर भगवान से ज्यादा भजन में लग जाओ, है ना। तो ये घर को संभालना, ये सारा आप अपना पुत्र को सौंप दो, फिर आप भजन में लग जाओ, इसका मतलब है ना। 51, वन, है ना। प्रहलाद महाराज भी अपना फादर को बोलते हैं ना, है ना। तो आपका अभी अ, वनो वनम गतो हरिमाश्रयेत, ऐसे कुछ श्लोक आते हैं ना। आप वन जाइए, तो वन जाके क्या करना चाहिए? हरिमाश्रयेत, है ना, हरि का आश्रय लीजिए। बट आजकल कौन कर पाते हैं? ध्रुव महाराज इतना डिटरमाइंड थे, है ना, कुछ प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने चले गए। बट आजकल कौन कर पाते हैं, है ना। भगवान से कितना लोग जुड़ रहे हैं, है ना। हम स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो मुंबई का आबादी, है ना, उसमें भी कुछ जॉब कर रहे हैं और 50 के ऊपर क्रॉस हो गए हैं, है ना, अच्छा खासा पोजीशन में है। तो कौन आ रहे हैं मंदिर आके फिर ये भजन का अपना रहे, है ना। बहुत कम लोग, गिने चुने लोग हैं। तो उन्हें भक्ति इसलिए रेर है ना। सब लोग समझ नहीं पाएंगे ना, भक्ति का जो गुह्य चीज समझना बहुत मुश्किल है ना। प्रहलाद महाराज भी यही बताते हैं, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मितो अभिपद्येत गृहवृतानाम अदांत गोबेर्विशतान्त मिश्रम पुनः पुनश्चरित चर्वनानाम न ते विदु स्वाद गतिम न विष्णुम दुराशयाय बहिरर्थमानिनम अंधायतांदेर अंधायतांदेर उरुदामी बद्ध, ऐसे समथिंग लाइक दैट, ऐसे श्लोक is there। तो क्यों नहीं आ पाते हैं भगवान के पास? हमारा गोल अभी तक हम समझ पाए, तो भगवान का प्राप्त करना और भगवत धाम चले जाना हम हमारा लक्ष्य है ना। बट हम भगवान के पास क्यों नहीं आ पाते, है ना, और भगवान को इतना तीव्र से भजन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अंधा एतांदेर उपगीयमानात, है ना। अंध है, अंध मतलब ब्लाइंड है। तो प्रभु जी हमको तो दिख रहे हैं ना, अब अंध क्यों बोल रहे हैं? हम फॉलोअर ऑफ ब्लाइंड क्यों बोल रहे हैं? अंध मैं नहीं बोल रहा हूँ, इधर बता रहे हैं कि भागवतम में और भगवत गीता में बता रहे हैं कि अंध किसको बोला जाता है। तो सब कुछ जानते हुए भी तो इंद्रिय तृप्ति रखना, जैसे ये श्लोक में भी आ रहा है आज का परपट में, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रवृत्त चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते, है ना। तो भगवान के ऊपर मत ही नहीं लगेगा, है ना। भगवान का प्राप्त करने का जो इच्छा डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ऑलरेडी मत ही दूसरों दूसरों के दूसरों पे लगा है, दूसरों में लगा है, दूसरों पे लगा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सूर्य, है ना, आप सोच रहे हैं कि सूर्य को देखना है, बट आपने आपको क्या किया? आपने पूरा कवर करके रखा है, पूरे एक रूम में बंद करके रखा है। अब सोच रहे हैं कि सूर्य को देखना है, सूर्य को देखना है, तो देख पाएंगे, है ना। तो फिर बोलेंगे फिर सूर्य है ही नहीं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? या खिड़की ओपन करना पड़ेगा, या दरवाजा ओपन करके बाहर आना पड़ेगा ना। तो जैसे खिड़की ओपन करेंगे या दरवाजा ओपन करेंगे, तो उसका आवाज पता चलेगा, सूर्योदय हो गया, फिर सूर्य का किरण आ रहे हैं, तो उसका पता चल जाएगा। तो ये इस खिड़की को ओपन करना पड़ेगा। तो खिड़की को ओपन करने का मतलब क्या है कि, है ना, जो ये भोगेश्वरी है, तो भोगेश्वरी को आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे साधु की संगत में आना पड़ेगा। जब साधु की संगत में आएंगे तब हम समझ पाएंगे, है ना। तब तक अब वो मुश्किल है, वेरी रेयर है। इसलिए अभी बता रहे हैं कि भक्ति वेरी रेयर है ना। तो ध्रुव महाराज जो जंगल में गए और जब नारद मुनि की इंस्ट्रक्शन के अनुसार ना वो जप कर रहे थे। क्या जप कर रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे, है ना। तो भगवान को देख भी पा रहे थे, है ना। तो आंखें बंद करके फिर भगवान के नाम पे ध्यान करते हुए, है ना, फिर वो जप कर रहे थे। तो फिर वो भगवान को देख पा रहे थे अपने हृदय, है ना। तो ये तपस्या कर रहे थे। ये तपस्या है अपनों को प्यूरिफाई करते हैं, है ना।
जैसे ऋषभदेव भगवान बताते हैं, है ना, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धि दस्मात् ब्रह्म सत्यम तो अनंतम। भगवत गीता में भी क्या बता रहे, यज्ञ दान तपा कर्म, है ना, पावनानि मनीषिणम। ये तप है तो पावनानि मनीषिणम, प्यूरिफाई करते थे, इतना बड़ा बड़ा संत को भी प्यूरिफाई करने वाला है, ये तपस्या है ना। तो ये तपस्या किसके आधारित होना, ऑथोराइज्ड तपस्या होना चाहिए, मनमानी तपस्या नहीं करना चाहिए। ऑथोराइज्ड तपस्या जो हमको बताया गया है ना, प्रमाणित किया है, वो तपस्या हमको करेंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो ध्रुव महाराज भगवान को देख पा रहे थे। प्रभु जी हम भी बाखें बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम बोलते प्रभु जी, हम तो देख नहीं पाते प्रभु जी, है ना, भगवान को। तो ध्रुव महाराज तो 6 महीने के अंदर देख देख पिया, तो ये इंटेंस है ध्रुव महाराज का। तो ये एक तरह से देखेंगे, एक तो कृपा है बोल सकते हैं, है ना। दूसरी तरह से देखेंगे तो उनका जो भक्ति कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जैसे रिसेंटली मैं डेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि तो ये डिवोशन सर्विस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है कि ऑलरेडी हमने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म इकट्ठा किया, जैसे अभी इधर बता रहे ना, ही डिड सम पायस डीड्स, कुछ पुण्य, कई भक्ति उन्मुख सुकृति बोलते हैं, है ना, हमने किया है, इसलिए स्वतः, है ना, वो इच्छा आता है कि चलो ये भक्ति उठाना चाहिए, है ना। अदरवाइज आप इतने लोगों में से आपने क्यों उठाया। अभी मैं एनआईटी जयपुर से मैं पढ़ाई किया था, जब एनआईटी जयपुर में पढ़ाई करता था, तो जब कितना लोगों को हमने सेमिनार किए थे, कितना लोगों को सेमिनार करते, सबको सेमिनार करते, सब लोग सेमिनार में आते हैं, और कुछ लोग इसे धीरे धीरे वो चढ़ते जाते हैं, तो कम लोग हो जाते हैं, है ना। इतने लोगों का हमने प्रचार किया, उसमें से गिने चुने लोग भक्ति को उठाया, है ना। इसका मतलब क्या है कि उनको कुछ ना कुछ सुकृति है, या फिर वो नेक्टर डिवोशन ये बताते हैं कि किसी साधु का या प्यूर डिवोटी का कृपा दृष्टि उनके ऊपर हो गया, तभी तो वो भक्ति उठाया, अदरवाइज कैसे उठा सकते हैं, है ना। या कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, या कोई वो महान संत का कृपा उनके ऊपर आ गया, तो इसलिए वो भक्ति उठा के तीव्रता से भक्ति में आगे कर रहे हैं, है ना। इसलिए हम भगवद गीता में भी हम ये श्लोक पढ़ते हैं ना, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। एक एग्जांपल बताता हूँ। तो अभी सुन रहा था भक्ति चारू महाराज का ग्लोरिफिकेशन यस्टरडे, तो बता रहे थे कि महाराज लेट आए थे, है ना, भक्ति में। मतलब उनका गुरु भाई लोग बता रहे थे कि लेट आए का मतलब क्या है कि 1976 में आए थे। प्रभुपाद कब चले गए थे इस धरती से, है ना, प्रकट कब हुआ थे, 1977, तो 1 साल पहले तो उन्होंने भक्ति में जुड़ा, है ना, भक्तिचार महाराज। तो तो ये बता रहे थे कि इनका भक्ति क्या है कि यूं, है ना, उनका ब्राह्मण दीक्षा एंड हरिनाम दीक्षा दोनों साथ में हो गया। वेरी रेयर थे बता रहे थे उस टाइम, तो वेरी रेयर थे दोनों साथ में होना। थोड़ा समय देते ना, जैसे पहले हरिनाम दीक्षा देते, कुछ समय रुकते हैं, इनका ये तैयार हो गए, इसके बाद ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है। बट महाराज का तुरंत हो गया, है ना, दोनों साथ में हो गए, है ना, हरिनाम दीक्षा एंड ब्राह्मण दीक्षा। तो इसके बाद 3 महीने के अंदर 90 डेज, 90 डेज के अंदर उनका संन्यास दीक्षा भी हो गया, है ना। तो बता रहे थे कि ब्रह्मचारी कभी देखा नहीं है उनको, ब्रह्मचारी का नाम किसी को याद नहीं है, महाराज का ब्रह्मचारी का नाम, है ना। तो बता रहे थे ब्रह्मचारी का नाम है शीर कीर चोर गोपीनाथ दास, कीर चोर गोपीनाथ दास महाराज का ब्रह्मचारी नाम, उसका मतलब संन्यास लेने से पहले का नाम। तो इसके बाद संन्यास लेने के बाद भक्ति चारू महाराज बन गए। तो देखिए, तो आप 3 महीने के अंदर इतना प्रोग्रेस सन्यासी तक हुआ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते गए, फिर गुरु बन गया, फिर, है ना। तो ये सर्टेनली क्या है बताइए, एक साधु का कृपा मान सकते हैं, या पिछले जन्म में ऑलरेडी भक्ति करके आ चुका है, इस जन्म में थोड़ा भक्ति करके चले जाएंगे। बहुत सारे केसेस है, हम देख सकते हैं, है ना। यूं ऐसे आ जाते हैं, यूं ऐसे उनका फिर भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज की केस में भी हम देखेंगे 6 महीने के अंदर इतना प्रोग्रेस हो गया। भगवान तपस्या कर रहे थे, तो भगवान को ध्यान कर पा रहे थे, भगवान को देख पा रहे थे। तो ये तपस्या की से, तपस्या का बल से तो देवता लोग भी विचलित हो गए, ठीक है। तपस्या से हम कुछ क्या नहीं कर सकते, विचलित हो गया। तो भगवान बोले, आश्वासन दिया कि चिंता मत करिए, है ना, आप लोग अपना भक्ति करते रहिए, है ना, मेरे भक्त मेरा भजन कर रहे, बस कुछ नहीं है। तो मैं जाता हूँ, तो उनको मिलता हूँ करके, फिर गरुड़ पे आरूढ़ हो गया, है ना, आरूढ़ होके फिर जहाँ पे जब
ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, उधर आ गए मधुवन, वृंदावन में, उधर आ गए। आप ध्रुव टीला है, तो आप लोग कभी वृंदावन गए तो आप देख लीजिए, तो ध्रुव टीला मधुवन में, है ना, बहुत सुंदर है स्थान है। हम गए, 2-3 बार गए, तो बहुत अच्छा स्थान है। तो उधर गए, भगवान आए उधर। तो जब भगवान आए तो भगवान तो के ऊपर चिंतन कर रहे थे ध्रुव महाराज। तो उनका चिंतन क्या बोलते, देख पा रहे थे ना अपने आप को, सॉरी, भगवान को देख पा रहे थे। तो फिर जब भगवान जैसे प्रकट हुआ तो वो ध्यान करना भंग हो गया। तो भगवान को नहीं देख पा रहे थे, क्या हो गया करके विचलित हो गए। वो आंखें खोला, आंखें खोलेंगे तो फिर आंखें के सामने कौन आ गया, भगवान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नारद जी है, तो नारद जी का भी ऊपर भी बहुत कृपा है ना। तो बताते खुद, ये संत लोग हैं, चातुर्मास्य पालन करते हुए मेरे घर पे रुके हैं, है ना, मतलब इधर रुके हैं, तो उनकी कृपा से मैंने भक्ति में इतना आगे बढ़ा, है ना। तो जब वो माता का देहांत हो गया तो फिर क्या, छोटा बच्चे हैं तो फिर क्या है, किसके ऊपर अभी खाना खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कुछ चिंता नहीं है। फिर चला गए, चलते गए चलते गए चलते रह गए। फिर थकान आ गया, तो बगल में सरोवर था, उसमें नहा के फिर थोड़ा पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर थोड़ा झपकी लगा। फिर झपकी लगा, झपकी में पूरा ध्यान कर रहे थे, फिर भगवान के ऊपर चिंतन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था ये भक्ति वेदांतों से, है ना, जो सन्यासी लोगों से सुना था। तो भगवान का क्वालिटीज नाम जपते करते करते तो भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे, तो उसे भगवान को देख पा रहे थे। तो फिर आवाज हुआ कि अ, देख पा रहे थे, फिर इसके बाद भंग हो गया, है ना। तो फिर विचलित हो गया नारद जी। तो विचलित हो गया, तो क्या हुआ क्या हुआ, मैं कितना भी प्रयास कर रहे थे, फिर चिंतन कर रहे थे, भगवान को देखना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ, बट नहीं हो रहा। तो तब आवाज हुआ कि इस जन्म में नहीं है। आप इससे इस इंटेंस से जैसे थोड़ा झलक देते हैं ना, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान भी हमको थोड़ा सा, जब हम भक्ति में आते हैं तो शुभदा क्लेशाग्नि, है ना, जो हम मटेरियल संसार से इतना दुख पाके पाके आते हैं, वो थोड़ा खत्म हो जाते हैं, और शुभदा स्पीशियसनेस चालू हो जाता है। तो थोड़ा हमको बूस्ट अप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा भगवान हमको थोड़ा सुख का थोड़ा आभास करते हैं, है ना। तो और सुख का आभास करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि आनंद में है, फिर बाद में हमको इतना कष्ट हो जाते हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं हम भक्ति में कितना दृढ़ है ना, टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग होता है भक्ति में, तो टेस्टिंग होता है ना। तो और इंटेंसिफाई करना चाहता है हमारे भक्ति को, जैसे गोपियां लोग, तो गोपियां को 11 साल भगवान वृंदावन में थे, तो फिर 11 साल के बाद वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका चले गए। तो बाद में कुरुक्षेत्र के समय पे, जो एक्लिप्स के समय, सूर्य ग्रहण, या उस समय पे जब सब लोग मिले थे, उस टाइम तक तो भगवान का दर्शन नहीं दिया जो वृंदावन वासी लोग। क्यों? क्योंकि विरह में जो भक्ति करते हैं ना, उसका आनंद अलग ही है। तो वो दिखाना चाहते थे भक्त लोग, हमेशा भगवान की हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं, है ना, किसी परिस्थिति में। तो ये इंटेंसिफाई, भगवान का भक्ति इंटेंसिफाई करने के लिए ये करते हैं, तो नारद जी। तो जो ध्रुव महाराज का ध्यान भंग हुआ, है ना, भंग होने तो सामने ओपन करके देखेंगे तो फिर भगवान सामने है। तो उधर आप लोग श्लोक पढ़िए, है ना, ये इस चैप्टर का 3rd श्लोक है। तो भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए उसमें बताया, तो आंखों से ऐसे देख रहे थे भगवान का सुंदर दर्शन, और चुम्बन कर रहे थे उनका लोटस फीट को, आलिंगन कर रहे थे और अपने हाथों से, है ना। तो ये भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, है ना। तो इतना सुंदर, है ना, जब भगवान के सामने आते हैं तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन जी, और राधा रास बिहारी, ललिता जी, विशाखा जी, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, एंड गौर नेता है। तो कैसे करना चाहिए, तो पीर है ना, सुंदर जो भगवान का अर्च विग्रह को, है ना, जो सुंदरता को आंखों से पी रहे, है ना, ऐसे। तो ये ऐसे हमको देखते रहो बस, है ना। तो ये सुंदरता को, ये दर्शन ऐसे करना चाहिए बताया था। फिर दंडवत करने के बाद तो ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं, है ना, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, बट नहीं हो पा रहा था, तो बच्चे थे। तो फिर भगवान समझ में आ गया, भगवान को समझ में आ गया कि ये ध्रुव तो मेरे को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। तो अपना शंख ध्रुव महाराज की सिर पे रखा, तो उससे उनका क्या बोलते हैं, वेदों का पूरा इम्पोर्ट्स है, उनको प्रकाशित हो गए हृदय में। जैसे हम पढ़ते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित,
तो जैसे ध्रुव महाराज का जो हृदय में प्रकाशित हो गया, हमारे हृदय में भी प्रकाशित होगा। कब? जब हम गुरु का आदेश को पालन करते हुए दृढ़ता से हम भक्ति करेंगे, तो ये क्या बोलते हैं, जो वेदों का इम्पोर्ट्स है, हम पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा, हम भी जीवन में उतार भी पाएंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैव कथिता ही अर्था प्रकाशयति महात्मनः। ना, जो श्रद्धा है, फेथ है, जो गुरु है ना, भगवान से अभिन्न है। इसका मतलब क्या है कि भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। उनका वर्ड्स, वचन जो बताया, उनको श्रद्धा से, है ना, उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम पालन करेंगे। स्वतः का जो सेवा करते हैं उनका देखो, है ना। अभी अभी देखिए, ध्रुव महाराज कभी स्कूल में गए क्या? जो गोपियां लोग कभी स्कूल गए थे क्या? बट उनका देखो सिद्धांत, देखो उनका ग्लोरिफिकेशन, देखिए कितना हाई फाई है। अभी लोग सुने हैं ना, अभी जो ध्रुव महाराज इतना ग्लोरीफाई किए, है ना। तो कभी स्कूल गए? तो हम स्कूल में जाते, इतना पढ़ते, फिर भी याद नहीं रहता। बट इधर ध्रुव महाराज कभी स्कूल में नहीं गए, है ना। बट स्तुति कैसे गा रहे थे देखो। ऐसे क्या होता है, भगवान की कृपा से होता है सब, है ना। तो ये भगवान को कृपा प्राप्त करना है, तो ये श्रद्धा, फेथ हमको बढ़ाना चाहिए। जितना फेथ हम बढ़ाएंगे, है ना, उतना श्रद्धा, दृढ़ता से हम भक्ति कर पाएंगे, है ना। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम दम येन माम उपयान्ते। कुछ बच्चे लोग हैं, देख लीजिए, कुछ बच्चे हैं, क्या बोलते हैं, अभी माँ बाप भक्ति में आ गया, अभी इस होता, अभी भक्ति क्या बोलते हैं, बच्चों को भी बचपन से भी भक्ति करने का मौका मिल जाता है ना। कुछ बच्चे लोग हैं, देखो पूरा 700 श्लोक याद है भगवत गीता का, है ना। देखिए क्या है, तो भगवान कृपा नहीं है तो क्या है बताइए। भगवत गीता का पूरा श्लोक याद है, भागवतम का क्लास लेते हैं, अब यूट्यूब में देखते हैं ना, कुछ बच्चे बच्चे लोग हैं, तो वो श्लोक को धारावाहिक बोल रहे हैं, है ना, तो ये सिद्धांत बता रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा से होता है। तो ये ध्रुव महाराज भी स्तुति कर रहे थे भगवान की कृपा, तो शंकर का, है ना। तो ये हमको दृढ़ता और श्रद्धा कैसे बढ़ाएंगे, है ना। प्रभु जी हम चाहते हैं हमारा श्रद्धा बढ़े, है ना, कैसे बढ़ाएंगे? जैसे अभी ये प्रहलाद महाराज का भी हमने कोट किया था, तो हम चाहते भी हम भगवान के मति नहीं लग पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हम भोगेश्वरीय प्रसक्ता ना, भोगेश्वर में हम पढ़े हैं, है ना? तो फिर मति कैसे लगेगा? तो फिर प्रहलाद महाराज खुद बताते हैं कि भक्तों की एसोसिएशन से, भक्तों का चरण धूलि हम सिर पे लगाएंगे, तब हमारा, क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि हमारा भक्ति में आगे बढ़ने के चांस है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं बता रहा हूँ कि नेशाम मतिस्तावदुरुक्रमांग्रीं स्पृशत्यनर्थपगमो यदर्था महीयशां पादरजोभिषेकां निष्किंचनानां न वृणीत राजन, है ना। तो क्या बता रहे हैं, हाँ? मति, जो मति है, हमारा मति है, भगवान जो है उरुक्रमांग्रिम, तो बहुत बड़ा बड़ा चीज करते हैं, जो इतना अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं, उनके चरण कमलों पे नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि अनर्थ भगमो शासक, बहुत अनर्थ है हमारे अंदर। ये क्या अनर्थ है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्त, ये सारा अनर्थ ही है ना। तो खुद अनर्थ में अब कैटेगरी करेंगे तो बहुत सारा हम आए थे। सिंपली बोलते हैं मटेरियल डिजायर्स एक अनर्थ है। तो मटेरियल डिजायर्स की वजह से हम, हमारा मति भगवान की चरण कमलों में जो उरुक्रमांग्री है, तो वो उसके ऊपर नहीं लगा पाएंगे। पर बताइए, तो सोल्यूशन भी बताइए प्रभु, तो कैसे होगा? महीयशाम पादरजोभिषेका, महीयशाम पादरजोभिषेका। तो पाद का रज है, रज मतलब जो डस्ट, डस्ट पार्टिकल्स है, उसको हम अभिषेक करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि चरण कमल को, प्रभु जी आपका चरण कमल चाहते हैं, थोड़ा पकड़ लेते हैं उनको, ऐसे नहीं करने का। पाद रजोभिषेकम का मतलब क्या है कि उनका वाणी, उनका सेवा करना, उनका वाणी को फॉलो करना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, तो ये इंपॉर्टेंट है। महीयशाम कौन है? वो निष्किंचना नाम नवनीत राजन, तो निष्किंचन है ना। तो कोई डिजायर नहीं है, एक ही डिजायर है उनका। क्या रहता है उनका डिजायर? भगवान की सेवा करना। उसे भक्तों को हम सेवा करने से और उनका इंस्ट्रक्शन पालन करने से हमारे भक्ति में, स्वतः भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है ना। बहुत सारा श्लोक है ना, ये भक्ति, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन, है ना। ये भागवतम बहुत सारा श्लोक में दिया है। शुश्रूषया श्रद्धानश्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् माः सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्, है ना।
महात्मानस्तु मां, लाइक सो मनी श्लोका, क्या बताऊं, है ना। तो आज 19 श्लोक में भी बहुत सारा है। तो एक आज का श्लोक ये, है ना, 19 श्लोक में बता रहे कि भगवान बता रहे ध्रुव महाराज को। तो ध्रुव, पहली ध्रुव महाराज की इच्छा को भगवान समझ लिया। क्यों समझ लिया? क्योंकि भगवान सबके हृदय में है, ध्रुव महाराज के हृदय में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई गार्डन से जा रहे हो, है ना, तो गार्डन से जा रहे हो, फूल जो फ्लावर का गार्डन से जा रहे हो, स्वतः वो जो फ्लावर का गार्डन का जो खुशबू है, फ्लावर्स का खुशबू है, आपको स्मेल कर पाएंगे, यस और नो। तो सिमिलरली भगवान हमारे पास में बैठे हैं, तो हमारी इच्छा क्या है तो भगवान नहीं समझ पाएंगे क्या? समझ पाएंगे। तो भगवत गीता में बता रहे थे कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। बहुत सारा श्लोक है, भगवान हमारे हृदय में है। तो भगवान जानते हैं हमारा इच्छा क्या है, इच्छा के हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा हम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। इसलिए हमारी इच्छा को स्पिरिचुअल इच्छा, है ना, स्पिरिचुअल डिजायर डेवलप करना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे होगा? जैसे हमें अभी बताया, भक्तों की संग में आके, भक्तों के सुनने से, भक्त का ग्लोरिफिकेशन एंड भगवान का ग्लोरिफिकेशन भक्तों से सुनने से हमारा मति, है ना, भगवान के चरण कमल में लगेगा, है ना। तो ये है ना। तो भगवान जानते हैं, है ना। तो फिर भगवान ये 19 श्लोक में बता रहे हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना, आपका जो डिजायर है, तो आप चाहते हो क्योंकि ब्रह्मा जी से बढ़कर मेरे को राज्य चाहिए। आप बताइए, आप लोग सोचिए थोड़ा कि भगवान को कोई असंभव चीज होता है क्या? भगवान को कोई असंभव नहीं है ना। अब भगवान चाहते थे ये सृष्टि हो, लेट देयर बी क्रिएशन, तो सृष्टि हो गया। तो भगवान नहीं दे सकते क्या ध्रुव महाराज को? तो भगवान ये क्यों बता रहे? भगवान ये बता रहे कि हमारे लिए मुश्किल है, भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है ना। हम जो बद्ध आत्मा है, हमारे लिए कोई भी कुछ भी कर पाना मुश्किल है, बट हम अपने आप को भगवान से जुड़ेंगे तो असंभव चीज भी संभव कर पाएंगे, है ना, संभव हो जाएगा, है ना। तो बस हमको जुड़ना है, बस वी हैव टू कनेक्ट अवर सेल्फ विथ लॉर्ड थ्रू गुरु परंपरा के माध्यम से हम भगवान से कनेक्ट करना चाहिए, है ना। ये बताया 19 श्लोक में। तो हाँ, तो एक लास्ट में बता के हम इधर एंड कर लेंगे, टाइम भी हो गया। तो भगवान इधर ध्रुव महाराज को इतना बड़ा, क्या बोलते, पोल स्टार, ध्रुव तारा बोलते हैं, है ना। तो वो दिया जा रहा है उनको। तो बट कुछ केसेस हम देखे हैं, भगवान अपना भक्तों को नहीं देते जनरली, किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। क्यों? ऐसे क्यों? ऐसे क्यों कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे देने से, हमारा रथी हमेशा लगा के रखेंगे, है ना, भगवान की चरण कमलों में, तो भगवान देते हैं, अगर उससे हमारा भक्ति बढ़ रहा है तो। अगर उससे भक्ति में बाधा आएगा तो भक्ति, तो जनरली भगवान नहीं देते। इसीलिए ना शिल प्रभुपाद भी अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि शिल प्रभुपाद चाहते थे एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, तो इसके बाद वो पूरा अपना जो सब कुछ है भगवान की सेवा में लग जाए, है ना, तो ऐसे सोचते थे। बट भगवान ने क्या किया? पूरा छीन लिया हमसे, है ना। तो फिर युधिष्ठिर महाराज का भी एग्जाम्पल बताते हैं, है ना, इतना अ, है ना। फिर इसके बाद सुदामा, है ना, सुदामा कभी दिया था, है ना। और कभी देते हैं, कभी लेते हैं, भगवान छीन लेते हैं, है ना। तो उससे हमारा भक्ति में आगे बढ़ोतरी हो रहे हैं, तो फिर वो भगवान देते हैं, नहीं हो रहे हैं तो फिर ले लेते हैं, तो सिंपल। तो इससे बस हमेशा हमको याद रखना चाहिए भगवान से हम हमेशा कैसे कनेक्ट रहे और भक्ति में कैसे आगे बढ़े। तो ये, तो आज एक पवित्र दिन है, जैसे मैं बता रहा था, भाद्र पूर्णिमा। तो ये श्रीमद् भागवतम का आप लोग लीजिए, गिफ्ट करिए, है ना। दूसरों को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर नहीं चाहे तो अब इधर ब्रह्मचारी लोग हैं तो उनको भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है तो आप लोग करिए। और आज ज्यादा थोड़ा भागवतम पढ़िए, भागवतम का ग्लोरिफिकेशन सुनिए, है ना। सो थैंक